Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. This is lecture number 17, and the heading of the chapter is Motion in a Plane, whereas the chapter number is fourth. And this physics is belonging to NCRT Class 11 Physics. Basically, the theory part of this chapter is over yesterday, and today we are going to start with the numericals part 1. Let us see that how many numericals will be going to consisted of this lecture, as well as this is beta series, which is my version of physics, and you'll get regular updates at my YouTube channel, so which is Physics Indian Professor. So here we go. ठीक है. Now first of all I'm going to write the question, my dear kids. ठीक है, तो एक काम करते हैं, we are going to write the question into bifurcation of this. तो यहाँ पे इस bifurcation में इस क्वेश्चन को लिख डालते हैं. ठीक, चलो. Good afternoon, my dear kids. Good afternoon. Okay. The ceiling, the ceiling of a the ceiling of a long hall. ठीक है, the ceiling of a long hall is 25 meter high. ठीक है, तो एक हॉल है और उसका सीलिंग जो सरफेस ऑफ द हॉल से 25 मीटर हाई है. मतलब बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट हाइट. ठीक है, व्हाट इज द maximum horizontal distance what is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second. ठीक है, listen up, my dear kids. What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second can go without hitting the ceiling of the ceiling of the hall. ठीक है, ceiling of the hall. So basically ये क्वेश्चन क्या है बच्चों? So first of all I'll take the frame of the hall. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक फ्रेम लेना है. ठीक है, ये फ्रेम क्या बता रहा है? This frame is showing that the picture of the hall. ठीक है, क्या दिखा रहा है ये? The picture of the hall. So the height of this hall is how much? That is 25 meter. कितना ये? 25 मीटर है. Okay. Now what is the maximum horizontal distance that a ball, ठीक है, that a ball thrown, बॉल को क्या किया गया? थ्रो किया गया with a speed of 40 meter per second can go without hitting. देखो बच्चों क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, can go without hitting, मतलब वो हिट नहीं करेगा. Where? To the ceiling of the hall. मतलब when you see the hall height, you will come to know the inside roof जहां पे फैन फिट करते हैं, तो inside roof को सीलिंग बोला जाता है बच्चों. So when you fit a fan there, it will be called as ceiling fan. ठीक है, so now listen up, my dear kids. So a ball is thrown
बॉल को थ्रो किया गया है, सो विदाउट हिटिंग द सीलिंग दैट बॉल विल बी गोइंग टू रीच द मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे आके बॉल रुका। से फॉर एग्जाम्पल, the ball has reached the maximum distance। ठीक है, ओके, सो लिसन अप। Now listen up, my dear kids. So this is your range। तो मैक्सिमम रेंज गया है, तो वो रेंज कितना है, वी डोंट नो दैट, हमें पता नहीं कि कितना रेंज है। ठीक है, हमने पूरा सिनेरियो देखा जहां पे हाइट ऑफ द what hall is 25 meter। So this ball is moving with the speed of what, 40 meter per second। ठीक है, तो इनिशियल स्पीड इसका कितना है, 40 मीटर पर सेकेंड। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रेंज। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग माय डियर किड्स, दे आर सेइंग मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो कोई भी चीज को मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंकने के लिए यू शुड थ्रो, यू शुड थ्रो विद द एंगल, यू शुड थ्रो विद द एंगल। कितना एंगल बना के थ्रो करना पड़ेगा आपको, इट शुड बी 45। तो कितना एंगल पे थ्रो करना पड़ेगा, इट शुड बी 45। ठीक है, सो इफ इट शुड बी 45, तो यहां से आप एक क्या बनाओगे, स्ट्रेट सरफेस बनाओगे। इफ यू आर मेकिंग स्ट्रेट सरफेस, विथ रिस्पेक्ट टू दैट यू नीड टू शो द एंगल। तो आपको एंगल दिखाना पड़ेगा, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, सो यू आर थ्रोइंग अ बॉल, बेसिकली आपने बॉल को फेंका है, कितना एंगल बना के फेंका है, 45 डिग्री। ठीक है, ठीक, सी, so this is theta is equals to 45 degree, like this। okay, we have the data। हमारे पास अभी डाटा है, इसी डाटा के हिसाब से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है, वी नीड टू फाइंड आउट द रेंज। क्या यही फाइंड करना है, देख लो, या कुछ और फाइंड करना है। व्हाट इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक, तो हम रेंज के बारे में ही बात कर रहे हैं। सो बेसिकली रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या है, बताओ मुझे। क्या r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। कितने लोगों को ये याद है ये फॉर्मूला, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला माय डियर किड्स, फट से जल्दी से बोलो। डू एनीवन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मैं आप ही लोगों से बात कर रहा हूं, क्या मेरी बात सबको सुनाई दे रही है, क्लियरली सुनाई दे रही है बच्चों। ओनली प्रताप इज सेइंग यस सर, व्हाट अबाउट अदर्स आई डोंट नो, कान में रुइया है पता नहीं मुझे। आई एम, या थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो यार माय डियर किड्स, प्लीज रिस्पॉन्स। संतोष सी हिरेमठ, ओके। सो नाउ आई विल रब दिस, विद दिस आइडिया आई विल रब एवरीथिंग। ठीक है, तो इतना मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा सिनेरियो तो पता चल गया कि क्या हम कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, एवरीथिंग इज देयर विद अस। ठीक है, एवरीथिंग इज देयर विद अस, बट to get the mag, if it is vertically then we have to take maximum height na sir, yes Pratap। now listen my dear kids, we have, अभी देखो यहाँ पे what is the maximum horizontal distance। तो maximum horizontal distance हमने बोला, लेकिन वो maximum horizontal distance कितना है हमें पता नहीं। अगर रेंज पता नहीं है, रेंज पता नहीं है, सी हियर, रेंज पता नहीं है, तो हमें थीटा कैसा पता होगा, मेरी बात समझो। अगर मैक्सिमम रेंज मिला है तो देन थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम रेंज उन्होंने फाइंड करने के लिए बोला है, दे आर नॉट सेइंग दैट द बॉल हैज ट्रैवल्ड मैक्सिमम डिस्टेंस। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे आर आस्किंग, इट मींस यू नीड टू फाइंड आउट द रेंज। तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री ये कंफर्म नहीं है, तो थीटा हमको क्या करना पड़ेगा, ये भी फाइंड करना पड़ेगा। सो विल बी हैविंग डिफिकल्ट। तो अगर वो हमें दिया गया है, इफ दे आर सेइंग दैट द बॉल विल ट्रैवल्स मैक्सिमम डिस्टेंस, तब आप कह सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया एक एग्जांपल। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू मेक द
अननोन एंड नोन क्वांटिटीज। तो नोन क्वांटिटीज का बाइफर्केशन क्या है? हाइट इज इक्वल्स टू 25 मीटर। क्या ये सही है? ओके, सो रेंज, रेंज वी नीड टू फाइंड। ठीक है, तो रेंज अगर आप ऐसे लिखते हो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। तो ये थीटा तो हमको पता नहीं है, सो थीटा इज इक्वल्स टू, यू नीड टू फाइंड आउट, सो यू इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन एनी अदर थिंग्स? और कुछ? और तो कुछ है नहीं वैसे। ठीक है, नाउ सर, फिर ये हाइट काहे का काम का? वी डोंट हैव एनी हाइट टर्म इनटू दिस सर। नाउ लिसन अप माय डियर किड्स। सो हाइट का एक फॉर्मूला है, आप लोगों को, कितने लोगों को याद है पता नहीं। हाइट का हमने डेरिवेशन बनाया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? फट से टेल मी क्विकली। कितने लोगों को ये फॉर्मूला याद है बच्चों? हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ठीक है, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल g। ठीक है, सो ये दोनों को मैं क्या कर लेता हूं, यहां पे रब कर लेता हूं। ठीक है, नाउ लिसन अप डियर किड्स। तो आपको हाइट इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, सो इफ यू आर राइटिंग आउट दिस, ये अगर आप लिख रहे हो तो हमें एक चीज पता है, नहीं, 2g इट इज, यहाँ पे 2g है। ठीक है, चलो, सो वी नो वन थिंग, g इज ऑलरेडी कांस्टेंट, तो आप इसको लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, इट इज डिपेंडिंग अपॉन यू। सो दिस इज योर फॉर्मूला। तो मैं ब्लैक कलर फिर से लूंगा, एंड यू कैन राइट 2gh डिवाइडेड बाय u स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? इफ विल राइट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 2 इंटू 9.8 इंटू हाइट कितना है बताओ मुझे? इट इज 25 मीटर डिवाइडेड बाय 1600। 1600 क्यों? 40 इंटू 40 कितना हो गया बताओ मुझे फट से? 1600, इज दैट करेक्ट? सो टेक साइंटिफिक कैल्सी बिसाइड यू, क्विक से साइंटिफिक कैल्सी लेके बैठो, so that will be going to help you so much. So this is bifurcation here. ठीक है, now sin square theta as it is equals to, ये कितना होगा देखो, 2 इंटू 9.8 इंटू 25। ठीक है, सो कितना हो रहा है? 490 हो रहा है, ये 490 हो रहा है। ठीक है, सो डिवाइडेड बाय 1600। ठीक, 0 0 को कैंसिल कर दिया तो भी कितना आता है बताओ? 49 divided by 160, so it will be 0.30625, इतना आ रहा है, सही आ रहा है? So sin theta is equals to under root 0.30625, कितना आता है देखो? रूट ऑफ 0.30625, so it will be 0.5533। ठीक है, so this is sin theta, right? Now what we want here, हमें थीटा चाहिए सिर्फ, तो थीटा पाने के लिए sin inverse of, so to get the theta value what we are going to do, yeah, Rakesh Aiholi, good. So sin inverse of 0.5533, ठीक है, यही आता है ना? तो साइंटिफिक कैल्सी कितने लोगों के पास है फट से बताओ? 0.5533, so this is 33.5
59, ठीक है, 3, ठीक। तो इसको आप क्या कर सकते हो, यू कैन राइट दिस एज 33.60 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हो। सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा। इज दैट करेक्ट माय डियर किड्स? थीटा का वैल्यू मिल गया। शैल वी गो विद द रेंज? क्या हम लोग रेंज के साथ जाएं? By using the formula of maximum height of the ball reached, we found the theta value, ठीक है। So r is equals to u square sin 2 theta divided by small g, ठीक। Now u square क्या है? 40 into 40 1600, ठीक है। तो 2 into theta, theta is how much? 33.6, तो साइन ऑफ 2 into 33.6 कितना होता है? 67.2 होता है। Am I right? Divided by 9.8, देखो कितना आ रहा है। So sin of 67.2, so it will be 1600 into 0.9218, ठीक है, डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। डिवाइडेड बाय 9.8। So I'll rub this one, ये वाला 2 स्टेप्स में रब करता हूं, so that I should take the value of range, ठीक है। Now कितना आएगा बताओ फट से? 0.9218 into 1600, so that is 147.4, नॉट, नहीं, एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हो गया। 1474.88 डिवाइडेड बाय 9.8, ठीक है। कितना आता है बताओ फट से, बताओ जल्दी से। सो दिस इज रेंज। कितना आ रहा है? 150.49 मीटर। क्या ये यही आ रहा है? सो दिस इज योर राइट आंसर, ये आपका राइट आंसर है। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? किसी को कोई कंफ्यूजन? Can I have your response, my dear kids? Or simply you are keeping your mobile set beside you? Rakesh Aiholli, Pratap Rajput. Out of 20 members, only 2 members replied. So this is your range. ठीक है, चलो ये तो क्लियर हो गया। Now I'll take the second numerical. एक क्रिकेटर, ठीक है, एक क्रिकेटर है, तो देखते हैं क्या क्या करेगा बंदा वो। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 meter. See here, my dear kids, maximum horizontal distance of 100 meter, मतलब एक क्रिकेटर बॉल को 100 मीटर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तक फेंक सकता है। मतलब ऑलरेडी दे आर सेइंग दैट द रेंज इज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और वैल्यू भी दिया है, कितना है? 100 है।
ठीक है, मतलब थीटा कितना हो गया, थीटा इज 45 डिग्री। ये चीज दिमाग में रख लेना चाहिए। इफ दे हैव गिवन इट्स अ नोन क्वांटिटी, देन यू शुड टेक थीटा एज अ 45 डिग्री। हाउ मच हाई above the ground can the cricketer throw the same ball? Throw the same ball. ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन। एक क्रिकेटर है बंदा, ठीक है, तो ये क्रिकेटर जो है ना फील्ड पे खड़ा है, सो ही स्टैंडिंग ओवर द फील्ड। ठीक, नाउ व्हाट दिस पर्सन ही इज डूइंग, तो इस बंदे ने मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फेंका, ठीक, यहां से लेके यहां तक। सो दैट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है यहां से लेके यहां तक, इट इज द रेंज हैविंग 100 मीटर। ठीक है, ये अपने पास 100 मीटर मिल गया। नाउ ये जो एंगल है ना, ये आपका थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रेंज है तो 45 डिग्री हम कह सकते हैं। पिछला वाला क्या था, मैक्सिमम डिस्टेंस तक फेंकेगा, लेकिन कितना, इट इज द क्वेश्चन, इट वाज द क्वेश्चन इन द लास्ट न्यूमेरिकल। सो थीटा कितना मिला, 33 मिला उधर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बोल रहे हैं कि 100 मीटर है, तो थीटा इज इक्वल टू 45, ऑब्वियस। ओके, हाउ मच हाई above the ground can the cricketer throw the same ball? मतलब एक अगर मैक्सिमम डिस्टेंस हमें 100 मीटर मिल रहा है, तो यही बंदा कितना मैक्सिमम हाइट तक फेंक सकता है। ओके, अप टू हाउ मच हाइट दिस पर्सन कैन थ्रो। तो ऐसी बात है बच्चों, सो दिस थीटा व्हेन यू आर टेकिंग, ठीक है, व्हेन यू आर टेकिंग टू फाइंड आउट, अगर फेंक सकता है तो देयर शुड बी इनिशियल स्पीड, कितने स्पीड से फेंक रहा है, क्योंकि यहां पे रीच होने के बाद तो फाइनल स्पीड तो जीरो होगा, फाइनल स्पीड तो जीरो होगा। बट विथ व्हाट स्पीड ही इज थ्रोइंग, कि मैक्सिमम हाइट तक रीच करे, कैपिटल एच आप फाइंड करो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो टू फाइंड आउट दिस, वी आर नॉट गोइंग टू यूज हाइट फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे। आई विल टेल यू व्हाई, बिकॉज यहां पे भी क्या होगा, फॉर्मूला रेंज का यूज होगा, तो रेंज के फॉर्मूले से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इनिशियल स्पीड फाइंड करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि जब आप रेंज के फॉर्मूले से r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय स्मॉल जी, सी हियर, सी हियर, यहाँ पे क्या है, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री फॉर द रेंज आप यूज करते हो, तो होगा क्या यहाँ पे, it will be u square divided by g. So sine 2 into 45. So it can be written as u square by g. So 2 into 45 is 90. Sine 90 is equals to 1. तो कितना आ रहा है बताओ मुझे, u square by g. So this is for what? This is for maximum distance. ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू आपके पास कितना आया, u square by g. ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द इनिशियल स्पीड। तो इनिशियल स्पीड कैसे फाइंड करोगे, सिंपली बाय कीपिंग यू स्क्वायर बाय जी, ये नहीं, आगे बढ़ोगे, तो आगे बढ़ने के लिए आप क्या करोगे बताओ मुझे फट से, इनिशियल स्पीड फाइंड करोगे, है ना। तो अभी क्या करोगे, इनिशियल स्पीड फाइंड करने के लिए क्या इससे फाइंड कर सकते हैं हम, रेंज के फॉर्मूला से, देखो सब्स्टिट्यूट करके देखो कितना आ रहा है बताओ मुझे फट से, इनिशियल स्पीड, फट से देखो इनिशियल स्पीड कितना आ रहा है, जल्दी से। हम्म, अरे फुल्ली क्लियर नहीं भाई, व्हाट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, टेल मी, मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बोलना पड़ेगा आपको कि कितना आ रहा है। देखो मैं एक चीज बताता हूँ,
यू आर गेटिंग दैट r इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी। तो यू स्क्वायर बाय जी तो हमें पता है, लेकिन r कितना है? r इज 100 मीटर। क्या मैं इसको लॉक कर लूं? आई एम मेकिंग लॉक ऑफ दिस। कैन आई हैव योर रिस्पॉन्स माय डियर किड्स? आपको पता चला मैंने किसको लॉक किया? यू स्क्वायर बाय जी को लॉक किया। ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द हाइट फॉर्मूला। तो हाइट फॉर्मूला के लिए मैं फिर से एंगल यूज नहीं कर सकता, बिकॉज ऑलरेडी आई हैव यूज्ड, मैंने ऑलरेडी क्या यूज किया? हाइट का फॉर्मूला, ये थीटा ऑलरेडी यूज किया है मैंने टू गेट द रेंज। ओके, ऑलरेडी कैलकुलेटेड द रेंज बाय यूजिंग थीटा। तो मैं हाइट में फिर से थीटा को यूज नहीं कर सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड माय पॉइंट माय डियर किड्स। रेंज का फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी है। सो थीटा को मैंने ऑलरेडी यूज कर रखा है। तो यूज द फॉर्मूला ऑफ हाइट। तो क्या फिर से यूज करना पड़ेगा? आई नीड टू यूज दिस वन। मुझे फिर से ये यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इफ आई एम यूजिंग दिस वन, तो मैक्सिमम हाइट के लिए देखो यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? टेल मी, कितना एंगल बन रहा है? बताओ मुझे, हाउ मच, कितना बन रहा है? विद द रेड कलर आई हैव शोन यू, कितना बन रहा है यहां से लेके देखो यहां तक, कितना बन रहा है? यस, ओमकार हाथी, वेरी गुड। उमेश पी, वेरी गुड। सो we can use the height formula in two ways. Rakesh Ayoli 45 ilri 90 degree ri il nodrilla. We can use either v square is equals to u square plus 2as kinematic third equation. For s it will be h, acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity, ball el ಒಗದಿರಿ ಮ್ಯಾಗ್ ಒಗದಿರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಹೊಂಟದಂದ್ರ acceleration ಎಕಡದ? acceleration due to gravity is opposite. ठीक है, तो ನೋಡ್ರಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಕಡದ? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅದ. acceleration ಎಕಡದ? ಈ ಕಡದ. ಅಂದ್ರ acceleration due to gravity ಏನ್ ತಗೊಂತೀರಿ? ಮೈನಸ್ ಜಿ ತಗೊಂತೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತದ? ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್, and when the ball reaches maximum height, so final velocity ಏನಾಗ್ತದ? final velocity will be what? It will be equals to 0. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದ? v is equals to 0 ಆಗ್ತದ, ಕರೆಕ್ಟಾ? u square plus 2 minus g h. ठीक है, now listen up my dear kids. v square minus u square, v square minus u square is equals to minus 2gh. ठीक है, so v will become 0. so 0 होने के बाद 0 square, it will be 0. so minus u square minus 2gh. so we are cancelling out the minus sign, and u square by 2g is equals to height. ये वाला फॉर्मूला आता है by using kinematic third equation. this For this you can take theta is equals to 90 degree, यहाँ पे ले लो. so you will get the same formula, h is equals to u square by 2g. for what? for ball, for ball having vertical motion. कौन सा? vertical motion. ठीक है, so दोनों के लिए फॉर्मूला सेम आ गया. now h is equals to u square by g into 1 by 2. so देखो बच्चों, यहाँ पे u square by g क्या है बताओ मुझे फट से? क्या 100 है? so you can take 100 here divided by 2, means half means divided by 2. so 2 1 कितना हुआ? 50 मीटर. so height of the ball, how much it has reached? ये हाइट कितना मिला हमें? हाइट इज 50 मीटर, जो कि हमें फाइंड करना था. क्लियर? प्रताप राजपूत, उमेश पी, राकेश अयोहल्ली, so everything is fine here. क्या क्लियर हो गया बच्चों? so this is very much clear probably. okay, ये हो गया. now we come for the next numerical. तीसरा वाला न्यूमेरिकल को जाते हैं. so I will give you time to solve this problem. ठीक है, तो मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको दूंगा. we'll see that कितना आप लोग सॉल्व कर पाते हो. ठीक है, so the third numerical,
I'll first of all bifurcate this. A bullet, ठीक है, fired at an angle of 30 degree with the horizontal hits the ground 3 kilometer away, ठीक है, by adjusting by adjusting its angle of projection, its angle of projection, can one hope can one hope to hit a target 5 kilometer away. Assume the muzzle speed to the fixed and neglect air resistance. Neglect air resistance. Okay, fine. This is your question, my dear kids. ये आपका question है, ठीक है. So basically वो क्या कहना चाह रहे हैं? If you read this question properly, you'll get the answer. आपको आंसर मिल जाएगा वैसे. A bullet fired, ठीक है. A bullet fired at an angle of 30 degree. तो एक बुलेट गन लेना है, उससे बुलेट फायर करना है. तो वो गन को किस एंगल में रखोगे? तो ये आपका गन है समझो. सो दिस इज योर प्लेन सरफेस. सो एंगल जो आपको दिख रहा है दैट इज 30 डिग्री, ठीक है. सो विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे. तो जो भी बुलेट जाएगा 3 किलोमीटर के आगे जाके गिरेगा, ठीक है. दिस इज वन पॉइंट. बाय एडजस्टिंग इट एंगल, फिर से एंगल को एडजस्ट करो. एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, कैन वन होप टू हिट द टारगेट 5 किलोमीटर अवे. अगर हमने एंगल को एडजस्ट कर लिया तो क्या 5 किलोमीटर के आगे जाके वो बुलेट गिरेगा? एज्यूम द मजल स्पीड टू द फिक्स्ड. तो जो गन का मजल स्पीड है ना वो फिक्स रखो आप. एंड निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को छोड़ दो. सो यू विल बी हैविंग टू सिनेरियोस. दो सिनेरियोस हैं. एक आपका एंगल, ठीक है, 30 डिग्री एडजस्ट किया आपने. एंड यू नो व्हाट माय डियर किड्स, so bullet is moving from the initial point, ठीक है. तो ऐसे जाके गिरा, ठीक है, say for example here, and imagine that the 3 kilometer is up to here. 3 किलोमीटर यहां तक है, ठीक है. so after that the bullet has fallen somewhere here. यहां पे जाके गिरा है, ठीक है, इस पोर्शन में. so this is first scenario. ये आपका फर्स्ट सीन था. okay, now the second scene what they are asking, अगर एंगल को एडजस्ट किया हमने, ठीक है. सो कुछ एंगल को उन्होंने एडजस्ट किया है. नाउ एज आई सेड दैट, आपको मैंने बताया था वी आर गोइंग टू एडजस्ट द एंगल इन सच अ वे दैट की मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मिलना चाहिए हमें. तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमें क्या चाहिए? सो आई शुड एडजस्ट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन at theta is equals to what?
45 डिग्री। मैंने बुलेट को ऐसे फायर किया, ठीक है। सो टू गेट व्हाट, सो टू गेट द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। तो समझो ऐसे जाके गिरा है, तो जो ये रेंज है, क्या ये 5 किलोमीटर अवे है, ये क्वेश्चन है। सो इफ द बुलेट हैज फॉलन समवेयर हियर, तो क्या ये जो रेंज हमें मिला है, क्या ये 5 किलोमीटर अवे है? इज दिस ट्रू? वी नीड टू फाइंड आउट दैट। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वट एवर वी गेट द रेंज वैल्यू यहाँ पे मिलेगा फॉर द 30 डिग्री, so we need to take the value of that, and whatever we are solving the value for the theta is equals to 45 डिग्री, रेंज उसके लिए क्या आएगा वो लेना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के बाद जो रेंज मिलेगा हमें, सो दैट रेंज विल बी मैक्सिमम रेंज। और वो मैक्सिमम रेंज क्या, देखो यहाँ पे, कैन वन होप टू हिट ए टारगेट 5 किलोमीटर अवे, क्या ये मैक्सिमम रेंज है? ठीक है, सो यू नीड टू सी दैट। तो हमें वो चीज को देखना है, ठीक है। सो विल सी दैट क्या है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन का आइडिया तो पता चल गया बच्चों, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू, मैंने आपको क्या बता रहा हूं वो चीज आपको समझ में आ रही है शायद। इज दैट क्लियर? मैंने जो बताया आपको पता चल गया क्लियरली? इफ यू गॉट दिस, सो वी कैन इजीली सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है। इफ एनीबडी हैव डाउट्स, यू कैन आस्क मी रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली क्या फाइंड करना है आपको पता चल गया कि बुलेट जाके 5 किलोमीटर अवे गिरेगा या नहीं गिरेगा, यू नीड टू टेल दैट, एंड एग्जैक्ट वैल्यू हाउ मच वी आर गेटिंग, ये चीज फाइंड करना है, ठीक है। ओके माय डियर किड्स, ऑलरेडी आई रोट क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू हैव द सॉल्यूशन फॉर दैट क्वेश्चन, ठीक है। सो गिवन डाटा क्या है, वी आर गोइंग टू बाइफरगेट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल unknown and known quantities, ठीक है। Now, so the known quantities is range for theta is equals to 30 degree, range will be 3 kilometer, ठीक है, 3 kilometer away. Now angle of projection क्या था उसके लिए, theta is equals to 30 degree. So we know the value of gravity is 9.8 meter per second square, ठीक है। And what we are going to find here, हमें क्या find करना है, maximum range R max, तो R max हमें find करना है, ठीक है। चलो, for the angle of projection, for the angle of projection, theta is equals to 30 degree। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, we will be having range R is equals to u square sin 2 theta divided by small g. So u square divided by g को सेपरेट करता हूं, sin into 2 theta, theta कितना है बताओ, into theta, so that is 2 into 30 is 60 degree. So we are bifurcating this, हम लोग bifurcate कर रहे हैं यहाँ पे। One, wait my dear kids, ये सही है। Now listen, R is equals to u square divided by g, तो sin 60, sin 60 कितना है बताओ मुझे, क्या sin 60 मैं and what is R value, R value is, we know that for theta is equals to 30 degree, that is 3 is equals to u square by g, तो sin 60 कितना है, √3/2। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, नाउ 2 into 3, 2 इधर मल्टीप्लाई करेगा, √3 नीचे आएगा, सो दिस इज √3 is equals to u square by g. Therefore u square by g can be written as 2, keep as it is, so √3 into √3 divided by √3,
Are you getting my point, my dear kids? रूट थ्री इंटू रूट थ्री इज 3 वैल्यू, तो 3 को हम ऐसे रिवर्स लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 का क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया यहाँ पे। हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? कितने लोगों को पता है ये चीज? पता है? सो रूट थ्री गॉट कैंसल्ड, 2 into root 3. So u square by g value therefore is nothing but 2 root 3. Take this as equation number 1. Chalo. Good if you know these things. Now again bifurcation of these equations यहाँ पे। Listen up my dear kids now. For the maximum range of projectile, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, ठीक है। So then you can take r max is equals to u square sine 2 theta divided by, है ना, g. So we all know that u square by g को separate रखेंगे and sine into 2 into 45, तो कितना हो रहा है दोनों मिला के 90. So u square by g into sine 90, ठीक है. So sine 90 we all know that is 1. So r max is equals to u square by g. So take this as equation 2. On comparing, तो दोनों को कंपेयर करो, कितना मिल रहा है बताओ मुझे, 1 and 2. What you will get? We get, देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r max is equals to 2 root 3. क्या हम इतना लिख सकते हैं बच्चों? Shall we write like that? अगर लिख सकते हैं तो 2 into 1 point कितना आता है रूट 3 का, बताओ मुझे फट से बताओ। क्या 1.732 आता है? R max is equals to 1.732. Now what is this? 2 into 1.732 कितना आ रहा है बताओ मुझे, फट से आंसर बताओ। क्या इधर लिखूं मैं? R max is equals to, so can we write like this, 3.46 किलोमीटर, इतना लिख सकते हैं। So this is your right answer, है ना? Is that easy? Easy लगा आपको? So if you felt easy, then I'll proceed. आगे बढ़ूंगा, ठीक है? चलो, राकेश अहोल्डी, संतोष सी हिरेमठ, प्रताप राजपूत. Umesh P, very good. Now, my dear kids, after completion of this class, I'm going to tell you the pattern of the exams in the next week. Exams probably will be in the next week for 70 marks. ठीक है? तो don't skip the class. बाद में ये मत बोलना कि सर ने नहीं बोला, तो आप लोग absent करोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें. Now take down your homework question. So this is the fourth one. ठीक है? A fighter plane. A fighter plane flying horizontally. ठीक है? At an altitude. ये altitude क्या होता है सर? Altitude is nothing but my dear kids height of 1.5
5 किलोमीटर। हाइट क्या होता है? Whenever you are taking the height distance, it is by taking the reference ground, मतलब ग्राउंड से आप रेफरेंस लेके डिस्टेंस को ऊपर गिनते हो। लेकिन when you are in the plane, from the plane you are going to take the distance below, मतलब प्लेन से कितना नीचे है तो उसको एल्टीट्यूड बोलते हैं। दोनों हाइट ही है बेसिकली, ठीक है। विथ स्पीड 720 किलोमीटर per hour passes directly overhead an anti-aircraft gun. At what angle? At what angle from the vertical? From the vertical should the gun be fired? For the shell. With muzzle speed 600 meter per second to hit the plane. At what minimum altitude should the pilot fly the plane to avoid being hit? Take, see here, take, they are saying g is equals to 10 meter per second square. उन्होंने 9.8 नहीं बोला, they are saying that 10 meter per second square. Yeah, not only physics exams but all subject exams, my dear kids. ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳದಲ್ರಿ, ನೀವು ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾವಾಗ ಮ್ಯಾಲ್ ಹೈಟ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಗಿಂದ ಕೆಳಗ್ ಬಂದಾಗ ಹೈಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ತಿಳಿತು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಎರಡು ಹೈಟೇ. Okay, so this is over, my dear kids. Class is over. So I'll stop the class here. So thanks for listening patiently. Okay. So tomorrow we are going to meet at the same time. Fine. So I'll stop the recording first. Thanks for listening patiently. Jai Hind.